साथ वادی کشمیر سے ایک خوبصورت اور خوشخبری والی خبر آپ سبھی کے لیے۔ وادی کشمیر کے مختلف ضلعوں میں بارش اور برفباری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جو کہ لمبے وقت سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق وادی کے کچھ حصوں میں تازہ برفباری ہوئی ہے۔ گلمرگ، ٹنگمرگ سمیت کپواڑہ کی اونچائی والے علاقوں میں، بالائی علاقوں میں صبح صبح تازہ برفباری ہوئی، اور جیسے ہی لوگ نیند سے بیدار ہوئے اپنے گھر کے سامنے انہیں وہ خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملا جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ کئی لمبے وقت سے اس چیز کا انتظار ہو رہا تھا۔ بارش اور برفباری سے لوگوں کو تھوڑی راحت ملی ہے۔ تازہ برفباری سے علاقے کی خوبصورتی اور بھی بڑھ گئی ہے، ساتھ ہی درجہ حرارت میں بھی گراوٹ درج کی گئی ہے۔ پورا علاقہ برف سے ڈھکا ہوا نظر آنے لگا ہے، جو سیاحوں کے لیے توجہ کا مرکز ہے۔ ادھر تازہ برفباری کے سبب کئی اہم راستوں کو احتیاط کے طور پہ بند کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ضلع انتظامیہ نے بلا وجہ گھر سے باہر نکلنے کی صلاح نہیں دی ہے۔ طویل عرصے سے سوکھے کے بعد آج کئی میدانی علاقوں میں بارش ہوئی ہے، جس سے مقامی لوگ خاص کر کے کسانوں کو تھوڑی راحت ملی ہے، کیونکہ 80% بارش اس مرتبہ نہیں ہوئی ہے۔ لگاتار سوکھے کی مار جھیل رہے جموں کشمیر کے لیے خوشخبری، جہاں پہ الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ ضلعوں میں، میدانی علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں، اونچے علاقوں میں برف باری کی خبر۔ مقامی لوگوں کو امید ہے کہ بارش کے بعد پانی کے بحران سے بھی نجات ملے گی۔ ایگریکلچر سیکٹر کو، ہارٹیکلچر سیکٹر کو، سیریکلچر سیکٹر کو اس سے کافی زیادہ فائدہ ہوگا، اور جموں کشمیر میں جو کمیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان تمام تر کمیوں کو دور کیا جا سکے گا۔ تو فی الحال وادی کشمیر کے کئی ضلعوں میں بارش ہو رہی ہے اور برف باری دیکھنے کو ملی ہے۔ بتا دیں کہ اس مرتبہ جموں کشمیر کے الگ الگ ضلعوں میں ہونے والی بارش کی جو شرح ہے، فیصد ہے، پرسنٹ ہے، وہ 80% کم ہوئی ہے، یعنی کہ جتنی امید کی جا رہی تھی اس سے بہت زیادہ کم، اور 20% بارش کی وجہ سے ندیاں، نالے، جھیل، کنال، تالاب سب سوکھنے لگے تھے۔ ویٹ لینڈ سے پرندوں کی واپسی شروع ہو گئی تھی، اور یہ مانا جا رہا تھا کہ جموں کشمیر جنت نظیر شاید نہیں رہ پائے، جنت جیسا جموں کشمیر نہیں رہ پائے، کیونکہ ونٹر سپورٹس جس کا ہم سبھی بہت ہی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے وہ ٹل گیا۔ سیاحتی مقامات پہ سیاحوں کی بھیڑ تو نظر آنے لگی، لیکن جس چیز کا لمبے وقت سے انتظار کیا جا رہا تھا وہ نہیں ہو پایا، اور اس وجہ سے بھی کیونکہ اس وقت جو موسم چل رہا ہے وہ چلئی کلاں کے بعد، چلئی خرد کے بعد چلئی بچہ کا سیزن شروع ہوا ہے، جس میں چلئی کلاں میں شدید برفباری ہوتی ہے، چلئی خرد میں ہلکی برفباری ہوتی ہے، اور بارش کا سلسلہ بھی، اور چلئی بچہ میں بارش ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن چلئی بچہ کے آغاز کے ساتھ ہی جموں کشمیر کے الگ الگ علاقوں میں بارش کی خوبصورت بوندیں زمین کو چھونے لگی، اور یہ پیغام لے کر کے آئی کہ شاید اب جموں کشمیر کا جنت نظیر والا اسٹیٹس ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہاں کی سرسبز و شادابی برقرار رہے گی، یہاں کی خوبصورتی برقرار رہے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بالائی علاقوں میں برفباری اور بارش کے بعد الگ الگ جگہوں پہ لوگوں کو خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملے، اور حوصلہ افزا خبر بھی۔ زوجیلا پاس پر ہوئی تازہ برفباری کی وجہ سے شری نگر لے ہائی وے کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ عارضی طور پر مطلب فی الحال وقتی طور پر گاڑیوں کو آنے جانے پر روک لگا دی گئی ہے، اور یہاں پہ چونکہ بارش اور برفباری کے بعد صورتحال بگڑ گئی، اس وجہ سے آگے کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ ہائی وے گزرتی ہے، اور یہاں سے لوگ بڑی تعداد میں گاڑیاں گزرتی ہے۔ زوجیلا پاس کا یہ راستہ جہاں سے ٹنل ہو کر کے گزرتا ہے، برف باری کی وجہ سے فی الحال بند ہے۔ تو شری نگر لے ہائی وے کو وقتی طور پر، عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ فی الحال گاڑیوں کو آنے جانے پر روک لگا دی گئی ہے، لیکن جیسے ہی بارش اور برف باری کا سلسلہ رکے گا فوراً آگے جانے کی اجازت ملے گی۔ اور میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی پیشن گوئی کے مطابق کشمیر کے چناب اور پہاڑی علاقوں میں برفباری اور شدید برفباری دیکھنے کو ملی ہے۔ کئی علاقوں میں بارش بھی ہوئی ہے۔ سیاحتی مقام اور گلمرگ، ٹنگمرگ سمیت ساؤتھ کشمیر میں یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شری نگر میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 1.2، گاندربل میں 3.0، بڈگام میں 1.0 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ ساؤتھ کشمیر کے اننت ناگ میں 3.0، پہلگام میں، کانسی کنڈ اور پلوامہ میں
2.0, शोपिया में 5.0 और कुलगाम जिले में 4.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में 6.0 और बांडीपुरा में 4.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बालाई इलाकों में यानी ऊंचे इलाकों में सबसे ज्यादा 7.5 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। गुलमर्ग में सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है, जो कि खुशाइंद बात है। बता दें कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 19 और 20 को बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया था। मौसम विभाग के मुताबिक आज शाम से मौसम में बेहतरी आ सकती है। 21 से 23 फरवरी तक खुश्क रहेगा, लेकिन 24 और 25 फरवरी को अलग अलग मुकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। बता दें कि 2025 के शुरुआती 1.5 महीने में जम्मू कश्मीर में मामूल से काफ़ी कम बारिश हुई। कश्मीर रीजन में 79 तो जम्मू रीजन में मामूल से 80% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। चिनाब के तीनों जिलों में यानी कि डोडा, रामबन और किश्तवाड़ में सुबह से ही रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिश है। ताज़ा बर्फबारी और बारिश से दर्जा हरारत में काफ़ी गिरावट रिकॉर्ड की गई है। बटोत में गुज़िश्ता रात मिनिमम टेम्परेचर 3.7, बनिहाल में 2.4, भद्रवा में 4.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरीके से श्रीनगर में गुज़िश्ता रात यानी कि पास्ट नाइट कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड की गई। 4.4 यहाँ का दर्जा हरारत रहा और पहलगाम में 1.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। गुलमर्ग में पारा नीचे गिर करके -2.8 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो अलग अलग इलाकों के अलग अलग चीज़ें, अलग अलग टेम्परेचर, बारिश और बर्फबारी की सूरत हाल हमने आपको बताई, लेकिन फिल वक्त ऑन ग्राउंड क्या कुछ चल रहा है, कहाँ पे बर्फबारी, कहाँ पे बारिश और कहाँ पे रुकावट है, कहाँ पे खुश्की है, महकमे मौसमियात की क्या पेशन गोई है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। गांदरबल का रुख करेंगे। सबा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और फयाज बांडीपुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबा, क्या कुछ सूरत हाल है? मौसम ने अचानक करवट ली और एक नई सुबह बेदार हुई जम्मू कश्मीर के लिए। जी देखिए, बिल्कुल जैसे कि मौसम महकमियात की तरफ से प्रेडिक्शन जाहिर की गई थी कि 19 तारीख से ही हमें मौसम में तब्दीलियां देखने के लिए मिलेंगी और ऐसा ही हुआ है। और गुज़िश्ता रात से ही मौसम में हमें तब्दीलियां देखने के लिए मिली। वहीं अगर हम बालाई इलाके की बात करें, खासतौर पर मैं गांदरबल की अगर बात करूँ तो सोनमर्ग जो सेहती मकाम है, वहाँ पर गुज़िश्ता रात हल्की बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। वहीं मैदानी इलाकों में भी सुबह सवेरे बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था। हालांकि अभी जो है बारिश रुकी हुई है, लेकिन बादल अभी भी छाए हुए हैं। और अभी अगर हम बात करें आइंदा आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम रहेगा तो आज का जो दिन है यानी कि 20 फरवरी, आज हमें बारिशें देखने के लिए मिल सकती है। वहीं 21 से लेकर 23 फरवरी तक मौसम अमूमन अबूर आलूद रहेगा, बादल छाए रहेंगे। और 24 तारीख से 26 तारीख तक फिर से एक बार बारिशों का सिलसिला जो है वो आदि कश्मीर में शुरू हो सकता है। एक तवील अरसे से खुश्क मौसम बना हुआ था, लोग भी काफी परेशान थे और इसका असर पानी पे पड़ा है कि जो पानी की अदम कश्मीर के हर एक जिले से, हर एक गांव से हम इस तरीके की तस्वीरें हमारे की जहां पर लोग जो है पानी की अदम दस्तयाबी से खासा परेशान है। और अब जब ये बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है तो लोगों में भी उम्मीद पैदा हुई है कि शायद जो परेशानियां पानी के हवाले से उन्हें हो रही थी, शायद उनमें कुछ राहत उनको मिलती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल जो मौसम है वो अब ऊपर आलूद बना हुआ है, बारिशों का सिलसिला वादी कश्मीर में जारी है। अब देखना यह रहेगा कि आखिर ये पानी की जो किल्लत पैदा हुई है खुश्क मौसम से, ये बारिशें उसे किस हद तक कम कर पाती है। बिल्कुल फयाज, आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं शायद बारिश या बर्फबारी के बीच में घिरे हुए हैं आप, तो मैं चाहूंगा कि चीटर अपने सर पे रख लें ताकि आपकी हिफाजत रहे। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा क्या सूरत हाल बनी हुई है। आमिर, बिल्कुल आपको बता दूं कि इस वक्त मैं जिला कुलगाम के खूबसूरत इलाके डीएचपुरा में हूं और आपको बता दूं कि कल शाम से ही अगर हम बात करें जिला कुलगाम के जो पहाड़ी इलाके हैं जिसमें अहरबल हैं और उसके साथ अगर डीके मरग के हवाले से बात करें, पांजल पथरी है, छिरन बल है, कोंग बटन है, यहाँ पर जो है हल्की फुल्की जो बर्फबारी वो शुरू हो चुकी है। और तकरीबन यहाँ पर जो है आज सुबह 3 से लेकर 4 इंच तक जो बर्फ है वो रिकॉर्ड की गई है। और इस वक्त भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस इलाके में मैं इस वक्त हूँ इसे निहामा डीएचपुरा कहते हैं और यहाँ पर भी हल्की फुल्की जो बर्फबारी है वो हो रही है। और उसके साथ अगर बात करें जनूबी कश्मीर के जितने भी अजला है, चाहे अनंतनाग, पुलवामा, शोपियान या
कुलगाम जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जो है बर्फबारी हुई है। चाहे पहलगाम के हवाले से बात करें, यहाँ शोपियान की जो पीर की गली मशहूर मारूफ है, वहां पर जो है बर्फबारी हुई। उसके साथ अगर बात करें जिला कुलगाम के अहरबल इलाके में भी अच्छी खासी बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है वहां पर। और इस वक्त अगर मैदानी इलाकों के हवाले से बात करें तो जनूबी कश्मीर के जितने भी मैदानी इलाके हैं तकरीबन हर जगह से कैसे टीवी को यही जो बताया गया है कि वहां पर जो है इस वक्त बारिशों का सिलसिला जो है वो एक बार फिर से शुरू हुआ है। और आपको बता दूं कि किसानों के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने जो है किसी हद तक राहत की सांस ली है और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा है, काफी अरसे के बाद जो है बर्फबारी और बारिशें जो है उनको देखने को मिली है। और इस वक्त भी आप मेरे पीछे बखूबी देख रहे हैं कि काफी ज्यादा यहाँ पे ठंड भी है और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो हल्की फुल्की यहाँ पे भी बर्फबारी जो है एक बार फिर शुरू हो चुकी है। जी आमिर, के पीछे जो भी चीजें नजर आ रही है हल्की बर्फबारी की तस्वीरें हैं और यकीनन इससे जो है काफी कुछ बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। सबा, काफी लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था कम से कम बारिश और बर्फबारी की, क्या उम्मीदें जगी हैं इस बर्फबारी और बारिश से? जी देखिए, बिल्कुल लोग जो है, अगर हम विंटर सीजन की बात करें तो 80% बारिशें और बर्फबारी इस साल कम हुई है और इसके बाद से ही लोगों में काफी ज्यादा परेशानी जो है लोगों में पाई जा रही है। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी वाबस्तगी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से है और अगर बारिशें नहीं होती है तो उसका सीधा सीधा असर उनकी फसल पर पड़ता है। और आने वाला जो टाइम है जिसमें हम देखेंगे कि बाहर का मौसम शुरू होगा और तमाम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज शुरू होंगी और अगर ऐसे में पानी की अदम दस्तियाबी रहेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त नदी नालों में भी उतना पानी नहीं है जितना पानी हुआ करता था, तो लोगों में खासा परेशानी हमें देखने के लिए मिल रही है। लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में बारिशें हों ताकि पानी से जो किल्लत पैदा हुई है उसकी भरपाई हो सके और आने वाले टाइम में उन्हें अपनी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटीज पर उसका ज्यादा असर ना पड़े। तो देखिए, लोगों को यही उम्मीद है और अभी जब हमने देखा है कि आज से ही जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है तो लोग इससे थोड़े से खुश जरूर है, लेकिन उनकी उम्मीद यही है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी और ज्यादा बारिश होनी चाहिए ताकि जो भी परेशानियां बारिश ना होने की वजह से और पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से उन्हें हो रही है उसमें थोड़ी सी कमी आए। क्योंकि देखिए, तमाम नदी नाले यहाँ पर ऐसे हैं और खास तौर पे चश्मे ऐसे हैं जो कभी सूखा नहीं करते थे, लेकिन इस साल विंटर में हमने देखा है कि उनमें पानी बिल्कुल ना के बराबर रहा। कुछ चश्मे ऐसे भी हैं जो पूरी तरीके से सूख चुके हैं, तो लोग काफी ज्यादा इस बात को लेकर परेशान है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि अब जो मौसम ने करवट ली है, आखिर कब तक ये बारिशों का सिलसिला यूं ही जारी रहता है और कितनी बारिशें यहाँ पर होती हैं ताकि जो पानी की अदम दस्तियाबी यहाँ पे हुई है उसकी भरपाई हो सके। जी आमिर, दिखाई थी। फयाज, क्या बांडीपुरा में क्या हाल है नदी नालों और पानी के स्रोत का, और इस बारिश से किसानों के लिए क्या उम्मीदें जगी है, बागात के मालिकों के लिए क्या उम्मीदें जगी हैं? आमिर, आपको बता दूं कि बांडीपुरा के हवाले से तो वहां का जो नुमाइंदा है वो मुझसे बेहतर बता सकता, लेकिन जहां पर इस वक्त में जिला कुलगाम और जो जनूबी कश्मीर के जो अजला हैं यहाँ पर जो अगर बात की जाए तो इस वक्त में एक ब्रिज पे हूँ और ये वो ब्रिज है जो दरिया विश्व के किनारे पे जो है यहाँ पर दो इलाकों को जो है आपस में जोड़ता है, एक कुलगाम और दूसरा जो है डीएचपुरा इलाके को जोड़ता है। और आपको बता दूं कि ये जो दरिया विश्व है, और अगर हमारे नाज़रीन को याद होगा 2014 में जो तबाहकुन सैलाब आया था और वो सैलाब जो है यहाँ से ही उसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि दरिया विश्व ही जो जनूबी कश्मीर के जो मुख्तलिफ इलाके इसके जद में आए थे। और आप बिल्कुल मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये दरिया विश्व जो है बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है और लोग काफी ज्यादा परेशान भी है इस वजह से, क्योंकि जब मैंने बुजुर्गों से बात की उन्होंने बताया कि हम पहली बार देख रहे हैं कि इस दरिया विश्व में पानी के बहाव का जो है कहीं कोई अंदाजा नहीं और इतना कम पानी जो हमने कहीं सालों के बाद हम देख रहे हैं। और बहुत सारे बुजुर्गों ने यह भी कहा कि जो चश्मे सूखे हुए हैं वो भी एक तशवीश है हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, क्योंकि जिस तरह मेरी साथी सभा ने बताया कि अगर पानी नहीं होगी, अगर बारिश नहीं होगी, अगर बर्फबारी नहीं होगी तो इसका सीधा असर जो है वो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर पे पड़ेगा। और अगर हम वादी कश्मीर के हवाले से बात करें तो जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तकरीबन 99% लोग जो हैं इसके साथ जो है बिला वास्ता यहाँ बिल वास्ता इनके साथ वाबस्तगी है। और तमाम जो यहाँ पे आमदन है लोगों की वो इसी सनत से आती है, एग्रीकल्चर से आती है, लेकिन जब बारिशें नहीं होगी, जब पानी नहीं होगा तो यकीनन उस पर जो है असर पड़ेगा। तो फिलहाल अगर जिला कुलगाम के हवाले से बात करें तो जिला कुलगाम में इस वक्त बारिश हो रही है, किसी हद तक ये किसानों के लिए एक राहत की सांस। जी हाँ बिल्कुल। वाटरफॉल जो अहरबल नाम से जाना जाता है, क्या सूरत हाल है फयाज?
देखिए मैं अभी वहीं पे जा रहा हूँ, और जैसे सुबह ही मुझे जो फोन कॉल वहां से आई है कि वहां पे बर्फबारी हो रही है, तो वहां पे दूसरी बात जिस तरह आपने वाटरफॉल के हवाले से बात की, तो वाटरफॉल तो पूरे आलम में मशहूर है, और वहां पर लोग जो है सिर्फ यहाँ पर मुल्क हिंदुस्तान से नहीं बल्कि बैरूनी मुल्क से भी लोग जो है उसको देखने के लिए। ठीक है फयाज, उस अहरबल वाटरफॉल की तस्वीर और उसके हवाले से रिपोर्ट का हम सभी को इंतजार रहेगा बेसब्री से। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तरह मालूमात के लिए। सब आपकी तरफ आएंगे। जिस तरीके से कल आपने रिपोर्ट दिखाई थी, पानी का स्रोत, साफ सफाई, कहीं न कहीं इंतजामिया तो जागा हुआ है इस सिलसिले में कि अब लग रहा है कि पानी का जो स्रोत है उसे ढूंढ करके बेहतर तरीके से लोगों के लिए यूटिलाइज किया जाए। फिलहाल अगर अलग अलग जगह की बात की जाए जम्मू कश्मीर में जहां जहां बर्फबारी और बारिश हुई है, तो कितनी इस मरतबा की बारिश लोगों के लिए कितनी राहत भरी है, खासतौर पर बाग के मालिकों के लिए, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, हार्टिकल्चर से जुड़े हुए लोगों के लिए, अलग अलग सेक्टर के लिए कितना फायदेमंद होगा इस मरतबा की बारिश? बिल्कुल, अब वो जो विंटर सीजन है वो खत्म होने पर है और चिल्ले प्लान खत्म हो चुका है, और फरवरी महीने के बाद ही जब मार्च का महीना शुरू होगा तो लोग जो है वो अपने बागवानों में जाएंगे, एग्रीकल्चर एक्टिविटी शुरू होंगी, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी शुरू होंगी, और जो सेब वगैरह की दरख्त है उनकी जो देखभाल है वो शुरू हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगले महीने से ही जो एक्टिविटीज है हॉर्टिकल्चरल और एग्रीकल्चरल की वो हमें देखने के लिए मिलेंगी। और ऐसे में बारिश का ना होना, पूरा विंटर सीजन जो है जिसमें हमें इतना खुशक देखने के लिए मिला है, तो सीधा सीधा असर उनके फसल पर हमें देखने के लिए मिलेगा। लोग काफी ज्यादा इस बात से परेशान है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, और उम्मीद यही है कि अब जो फरवरी की जो एंडिंग होती है और मार्च का जो महीना होता है, अमूमन कश्मीर में हमें यहाँ पे बारिशें देखने के लिए मिलती हैं, और लोग भी इस बात को लेकर उम्मीद जता रहे हैं कि अब बर्फबारी तो नहीं हुई लेकिन शायद बारिशें जो है वो होनी चाहिए, ताकि उनकी तमाम तरह जो भी एक्टिविटीज है खासतौर पर खेती बाड़ी को लेकर उस पर कोई असर ना पड़े। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि अब जिस तरीके से मौसम ने करवट लेनी शुरू की है, बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, कब तक ये सिलसिला बना रहता है, क्योंकि देखिए सुबह सवेरा तो बारिश शुरू हुई थी लेकिन उसके बाद ही फिर से बारिश रुकी है, और अब फिर से हल्की हल्की बारिश जो है वो आनी शुरू हुई है। तो जिस तरीके की उम्मीद लोग करते हैं कि लगातार बारिश हो 2-4 दिन तक, उस तरीके की बारिशें भी हमें देखने के लिए नहीं मिलती हैं। और कल सिंध नदी की आपने रिपोर्ट दिखाई थी, उसके बाद मनसबल लेक और थाजीवास ग्लेशियर की बात आती है जो कि गांदरबल में काफी ज्यादा फेमस भी है। क्या सूरत हाल इसकी देख पा रहे हैं आप फिलहाल? देखिए अभी तो फिलहाल जैसी सूरत हाल कल थी वैसी ही है, अभी भी मैं दरियाई सिंध के किनारे पर ही हूँ, और अभी भी जो पानी का बहाव जितना कल था अभी भी उतना ही पानी का बहाव बना हुआ है। अभी अगर 2-4 दिन बारिशें लगातार होती है और वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है तो यकीनन हमें इसके बहाव में थोड़ी सी तेजी देखने के लिए मिलेगी, तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी वो शायद उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई हैं अभी जो होनी है जम्मू कश्मीर, क्योंकि 80% बारिश की कमी, बर्फबारी की कमी इस मरतबा जम्मू कश्मीर के लिए काफी नुकसानदेह है, और उम्मीद यही की जा रही है इसकी भरपाई हो। शुक्रिया सबा हमारे साथ जुड़ने के लिए और खूबसूरत रिपोर्ट पेश करने के लिए। फिलहाल अलग अलग इलाकों का जिस तरीके से हमने रुख किया, बांडीपुरा का रुख करेंगे। वाहिद मकबूल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाहिद, क्या सूरत हाल है मौसम की? सबसे पहले आपसे अपडेट। हाँ देखिए, जिस तरह से लगातार पिछले कहीं दिनों से लोग जो है दुआगो थे कि यहाँ पे बारिशें हूँ, बर्फबारी हूँ, तो इसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो कुदरत है वो मेहरबान हो गई। और आज जिस तरह से हमने देखा कि सवेरे से ही मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला वो देखने को मिला, और साथ ही साथ जितने भी जिले बांडीपुरा के पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज इलाके हैं, तो वहाँ पे जो है हमने देखा कि बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से लोगों में जो है खुशी पाई जा रही है। क्योंकि जिस तरह से लंबे अरसे के बाद इस तरह की जो बारिशें होना, बर्फबारी होना, तो ये एक यकीनन एक खुशकिस्मती की बात है। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि जितने भी यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज थे वो अब धीरे धीरे सूख गए थे, नदी नाले चश्मे, अब उनमें जो पानी की सतह थी वो बिल्कुल कम होने लगी थी। तो साथ ही साथ जिस तरह से अब बारिशें हुई और साथ ही साथ मैदानी इलाकों में जिस तरह से बारिशें हुई और पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से बर्फबारी हुई, तो इससे यकीनन यहाँ पे जितने भी जो सोर्सेज है वो अब रिचार्ज होंगे। क्योंकि सारा जो हम कह सकते हैं पूरा जो दारमदार है इसी बारिश पे होता है, एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर का, या जितने भी अलाइड सेक्टर्स होते हैं पीने के साफ पानी के लिए या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो सारा का हम दारमदार कह सकते हैं इसी जो है पानी पे होता है। जब बारिशें ज्यादा कम हो तो यकीनन इस पे जो जरूर असर पड़ सकता है। तो फिलहाल जिस तरह से लोग काफी दिनों से दुआ गो थे कि बारिशें होनी चाहिए, कि लोग अभी भी दुआ करते हैं कि जिस तरह से हमने देखा सवेरे एक बुजुर्ग खातून जिसका वीडियो भी काफी वायरल
दिखाई दे रहा था कि जब बर्फबारी हुई तो बर्फबारी में किस तरह से दुआ गो थी कि रब्बे कायनात से कि यहाँ पे मजीद बारिशें हो, मजीद बर्फबारी हो, ताकि यहाँ पे जितने भी हम कह सकते हैं फसल हो या पीने का पानी वो बेहतर हो सके। जाहिर है कि लोगों की उम्मीदें इसी से जुड़ी हुई हैं। वाहिद, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, खासतौर पे बांडीपोरा में कई झीलें हैं, तालाब है, इवन जहां तक मुझे याद पड़ता है वुलर लेक भी वहीं है, पानी का स्रोत बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस मरतबा जब 80% कम बारिश हुई, बर्फबारी हुई, क्या सूरत हाल देखने को मिली इन तालाबों, झीलों और वेटलैंड वगैरह की? हाँ, देखिए, अगर हम एशिया की सबसे मीठे पानी झील वलर की बात करें तो उसमें पानी की सतह बहुत ही कम हो रही है, क्योंकि उसका जो मंबा है, हम कह सकते हैं, वो 2 बड़े नाले हैं, या साथ ही साथ दरियाई जहलम जो श्रीनगर से आता है, वो भी इसी में फिर झील वलर में कनेक्ट होता है। जब इन नदी नालों में पानी की सतह कम हुई है तो यकीनन जो वलर है इसमें भी पानी बहुत कम जो है वो देखने को मिल रहा है, बहुत ही पानी कम हो गया है, जिसकी वजह से वहां पे जितने भी आसपास लोग रह रहे हैं उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि झील वलर एक ऐसा है जिसमें हम कह सकते हैं लिफ्ट के जरिए मुख्तलिफ जो स्कीम है आपाशी या साथ साथ पानी की, वो इसी पे मुनासिर है। जब झील वलर में ज्यादा पानी हो तब ही बाकी जो यहाँ पे आसपास के लोग रह रहे हैं, चाहे हम कस्बे सोपोर की बात करें, बारामूला की बात करें, तो सारा जो पानी का मुनसर है वो इसी झील पे है। तो यकीनन जो पानी की सतह है बहुत ही कम हुई थी, लेकिन जिस तरह से अब उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह से बारिशें रात भर हुई तो कहीं ना कहीं इससे जो पानी की सतह में इजाफा जरूर देखने को मिलेगा और लोगों को किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। फिलहाल हमने देखा कि ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होते जा रहे हैं, साथ ही साथ क्योंकि जिस तरह से हमने देखा बारिशें इस साल बहुत ही कम हुई, बर्फबारी बिल्कुल कम हुई, तो यकीनन इससे जरूर आने वाला जो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर सेक्टर है इस पे इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में अब क्योंकि कुछ चंद दिन रह गए उसके बाद यहाँ पे जो स्प्रे करना होता है ऑर्चर्ड्स में, तो इस पे एक जरूर असर पड़ सकता है, या बाकी जितने भी यहाँ पे सेक्टर्स है तो उन पे काफी असर पड़ सकता है। लेकिन इस वक्त भी लगातार लोग दुआ गो है, वो चाहते हैं कि हम मजीद बारी हो, बारिशें हो, ताकि यहाँ पे जो आने वाला सीजन है वो अच्छी तरह से हो सके। जी आमिर, बड़ी बात है। ज़ाहिर है कि यही उम्मीदें थी लोगों की और उम्मीद यही है कि आगे भी इस तरह की बारिश बर्फबारी देखने को मिले। शुक्रिया वाहिद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मालूमात के लिए। जम्मू कश्मीर के अंदर बारिश और बर्फबारी को लेकर के जम्मू कश्मीर महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद लगातार केसर टीवी से बातचीत करते रहे और उन्होंने अपडेट भी दी हर एक चीज़ की, और उन्होंने कहा भी था कि आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी होगी। आज की बारिश और बर्फबारी ने लंबे वक्त से चले आ रहे सूखे को तोड़ दिया है, ऐसा उन्होंने कहा, और आने वाले दिनों में नदियों और नालों में पानी का बहाव बढ़ेगा। अगर मौजूदा मौसम मॉडल सही रहता है तो जम्मू कश्मीर में 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में ज़्यादा बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मैदानी इलाकों के अंदर देखा गया, वहीं जम्मू डिवीज़न के अंदर लगभग मॉडरेट रेनफॉल हुआ है, और अभी भी करंटली जो है बारिशें हो रही हैं जम्मू डिवीज़न के अंदर। कुछ एक पहाड़ी इलाकों में भी जो है हल्की बर्फबारी जो है वो शुरू हुई है। तो इंटरमिटेंटली आज रहेगा मौसम, जो है थोड़ा सा ख़राब ही रहेगा पूरा दिन भर, और टुवर्ड्स लेट इवनिंग या रात के दौरान जो है मौसम में फिर से बेहतरी के चांसेस हैं। फिर कमिंग डेज में खासकर 26, 27, 28 के आसपास एक स्पेल के चांसेस हैं फिर से, और ये स्पेल जो है थोड़ा सा मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस दिखा रहा है, जो अर्ली ट्रेंड्स हैं खासकर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, में दीजिए इजाज़त। देखते रहिए केसर टीवी। आदाब।